Hello dear aspirants. So this concept decoding is for a very important peripheral actually. It is not a single point. It is not about only plane. Basically here the theme is confined in the plane but with the points and line as well. Did you get my point? So in this we are gonna talk about, suppose that we are interested in talking about plane, ठीक है, passing through, ध्यान से देखना, plane passing through a point, ठीक, plane passing through 2 points, plane passing through 3 points, okay, plane containing a line, plane normal to a line or perpendicular to a line, or points are coplanar. For example, if you want to observe 4 points are coplanar. So ultimately you will say कि सर 20 मिनट में क्या ये सब कुछ पॉसिबल है with the manner in which you are famous for. I'm not famous actually, sorry, I take my words back. For which you are known for. कि कभी भी चीजों को बीच से नहीं उठाना, हर चीज को बेसिक से स्टार्ट करना. Yes, it is possible. And again I will say, 2 direct questions you can have out of these 20 to 25 minutes lecture, 20 minutes hardly, है ना? And indirectly without this you cannot move a single step in the whole analytical geometry. So don't take it lightly, okay? चलो आगे बढ़ते हैं. Be on the board please everyone. So what is our basic knowledge about plane? बताइए. Basic knowledge about plane in 3D. If you talk about this, so basically a general equation mathematically always represents a plane. Moreover, if you want to write the normal form of the equation of plane, then it can be written like this. If we are interested in writing the intercepts form of a plane, then that can be written like this. Fair or not? DCs and DRS के बारे में अपने को अच्छा खासा नॉलेज है कि DCs of a line we represent by LMN. Basically those are cos alpha, cos beta uniquely determined numbers which a line makes. Let's say OP is the line. If it makes the alpha angle with the x-axis, beta angle with the y-axis, gamma angle with the z-axis, then line OP ka DCs are LMN. Basically those are the uniquely determined numbers cos alpha, comma cos beta, comma cos gamma, right? So this is the basic information we carry. Now we are interested एक एक करके प्लेन एंड लाइन के बारे में, राइट? अभी देखिएगा, स्टार्ट करते हैं. देखना ध्यान से. पहला आर्टिकल, इफ यू आर interested in finding equation of a plane, I'm sorry, if we are interested in finding equation of a plane passing through a given point, let's say that point is given as x1, y1, z1. This is given by, ध्यान से देखिएगा, a into x minus alpha
प्लस बी इंटू बाई माइनस बीटा प्लस सी इंटू जेड माइनस गामा इक्वल्स टू 0, वेयर ए बी सी रिप्रेजेंट डायरेक्शन रेशियोज ऑफ प्लेन। यहां बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग। डियर फेलोज, व्हेन यू टॉक अबाउट डीआरएस ऑफ अ प्लेन, डीआरएस ऑफ अ प्लेन कहने का मतलब होता है, क्योंकि डीआरएस और डीसीज तो एक लाइन के होते हैं ना, तो आप कहेंगे कि सर आप तो बोल रहे हैं प्लेन के डीआरएस है, तो व्हेनेवर यू टॉक कि यू आर हैविंग एबीसी एज दिस प्लेन का डीआरएस, मेनली यू आर टॉकिंग अबाउट कि दोज आर द डीआरएस, किसके डीआरएस है? डीआरएस ऑफ नॉर्मल टू दैट प्लेन। आई थिंक आज मैंने आपका एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन दूर कर दिया होगा, ये मेरा विश्वास कहता है, नहीं तो खुद से पूछ के देख लो। So whenever you talk about a plane का DRS, so basically you talk about DRS of the normal to the plane, right? चलो. So if you are interested in finding what is the equation of a plane passing through a point alpha, beta, gamma, okay? That is given by this. अब ABC are unknown here, right or not? ABC are unknown here. So to get the exact equation of required plane, we need some more information. इसको स्टार मार्क कर लेना और आज के बाद ये ध्यान रखना, अगर आपको थोड़ी सी इंफॉर्मेशन और मिल जाए, क्या मिल जाए? थोड़ी सी इंफॉर्मेशन और मिल जाए तो आपको मजा आ जाएगा कि अच्छा एबीसी किसके बारे में बात कर रहा है, राइट? फॉर एग्जाम्पल देखना कितना ब्यूटीफुल आपसे क्वेश्चन पूछता है। बी ऑन द बोर्ड प्लीज एवरीवन। कल को मान लो उसने आपसे कहा, एक क्वेश्चन एश्योर कर रहा हूं आपका सीएससी और फॉरेस्ट सर्विसेज का, ठीक? फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ प्लेन पासिंग थ्रू अ पॉइंट, लेट्स से 2 0 -1 and perpendicular to the line with DC's 1, -1, -1. Is it visible? Fair enough. Can you tell me the equation of the required plane in 1 second? Please reply. Anyone? तो दोस्त 1 सेकंड में इसका आंसर दिया जा सकता है। देखिए ध्यान से क्या दिया है उसने। बी ऑन द बोर्ड प्लीज एवरीवन। इसके आंसर की बात करें, इक्वेशन ऑफ द प्लेन मस्ट बी ऑफ द फॉर्म b इंटू बाई माइनस 0 प्लस c इंटू जेड माइनस -1 इक्वल्स टू 0। सिंस प्लेन इज परपेंडिकुलर टू द लाइन विद द डीसीज, इसका मतलब क्या हुआ भाई, इस लाइन के डीसीज आपको दे दिए 1 -1 -1, तो ये डीसीज किसके वर्क करेंगे? प्लेन के डीआरएस की तरह। बोलो हाँ या ना। और डीसीज और डीआरएस में अगर कंफ्यूजन हो तो गो थ्रू द कॉन्सेप्ट ऑफ 5, ठीक? सो अगर एक परपेंडिकुलर, एक नॉर्मल के डीआरएस दे रखे हैं या डीसीज दे रखे हैं, तो वो डीआरएस प्लेन के डीआरएस को रिप्रेजेंट कर जाएंगे नहीं। So ultimately you will have the equation as that's it. बोलो ax plus by plus cz plus d equals to 0 का फॉर्म मिला कि नहीं? So it will be a required equation of the plane passing through a point
एम आई क्लियर टू ऑल? देखो, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं तुम्हें ये न्यूमेरिकल का आंसर बताने वाला था, बिल्कुल भी नहीं। अगर आप ऐसा समझ रहे हैं, इसका मतलब फिर आप इस कॉन्सेप्ट टॉक लेक्चर सीरीज का मतलब नहीं समझ पाए आप। दिस इज ऑल अबाउट मेकिंग यू फील एट वॉट स्टेप यू नीड टू थिंक वॉट। सो व्हेन आई से कि यू नो दिस फॉर्मूला कि इक्वेशन ऑफ अ प्लेन पासिंग थ्रू वन पॉइंट इज रिटन लाइक दिस, I was like trying to give you कि भाई if you give some more information ना, I can give you the exact equation of the plane, and once you give the extra information to me, I just landed on the definition कि अच्छा try to recall, suppose that parallel होता तो ABC will be in that same proportion, right or not? So that information you can use here. So I am saying कि such direct questions are very easy in nature, but for further chapters you people need to have these as an information for you. So एक पॉइंट से प्लेन पास होने वाले प्लेन की इक्वेशन कैसे लिखना है, क्यों एक एक्स्ट्रा कंडीशन चाहिए, उसको कैसे यूज करके इक्वेशन दिया जा सकता है, इज दैट क्लियर टू ऑल? 5 मिनट्स में एक टाइप का बैंड बजा, कोई दिक्कत किसी को? किसी को भी? चलिए, लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट. सो दिस वॉज 1. लेट्स मूव ऑन 2. If we are interested in finding equation of a plane passing through 2 points, ठीक है, let's say those points are given as P1 x1 y1 z1, P2 x2 y2 z2. फेयर? ध्यान से देखते रहना इस चीज को. होगा क्या प्यारे बच्चों, मैं आपको यहां पर कुछ स्टेप्स में लेकर जाऊंगा और आपको यह बताने की कोशिश करूंगा कि क्यों आपके टीचर ने एक पॉइंट से पास होने वाले प्लेन के बाद 3 पॉइंट से पास होने वाले प्लेन की इक्वेशन बता दी, क्यों यहां पर उसने इस चीज को बचा लिया, क्यों बुक के अंदर यह बात नहीं की गई. एंड देन यू विल रियलाइज कि डेफिनेशन और कॉन्सेप्चुअली पढ़ने का मजा ये होता है. ठीक है, चलो. इफ यू रिकॉल कि इफ आई ड्रॉ अ लाइन, ध्यान से देखना, इफ आई ड्रॉ अ लाइन जॉइनिंग दीज 2 पॉइंट्स P1 x1 y1 z1, P2 that is x2 y2 z2, then DRS of this line P1 P2 can be written as, right? कैसे लिखे जा सकते हैं? x2 minus x1 y2 minus y1 z2 minus z1. से यस और नो लिखे जा सकते हैं. चलिए, अब इस लाइन के DRS तो हमें मिल गए भाई. अगर मैं इस प्लेन का इक्वेशन निकालना चाह रहा हूं जो इन P1 P2 से पास हो रहा है, तो ठीक बात है, चलो ये लाइन इस पे लाई कर रही है. ध्यान से देखना इस चीज को. बी ऑन द बोर्ड प्लीज एवरीवन. हम जानते हैं प्लेन का जनरल इक्वेशन इज रिटन इन दिस फॉर्म. ठीक, सिंस passes through P1 and P2, so we must have the equations like this as well. विश्वास दिलाइए, होना चाहिए कि नहीं? ठीक है, ये बात बहुत बढ़िया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें. हम जानते हैं कि अगर मैं P1 से पास होने वाली इक्वेशन की, देखना ध्यान से, यहां तक तो कुछ बात बन नहीं रही. किसके बारे में? ABC कहां से निकलेगा भाई बताइए? 2 ही तो इक्वेशन नोन है अपने पास, ये तो हम लेकर चल रहे हैं ना. अब ABC 3 अननोन है, 2 इक्वेशन है, तो कैसे बात बने? सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में जाके थोड़ा सा मजा ले सकते हैं,
अगर आपको मैथ्स में इंटरेस्ट है तो। अब मैं एक और हिट एंड ट्रायल लेता हूं यहां पर। इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू P1, it can be written as a into x minus x1 by the previous first article. You getting my point or not? सब लोग now ABCR क्या है? ABC are the DRS of plane, means ABC are the DRS of a line which is perpendicular. Say yes or no. अरे विश्वास दिलाओ भाई मेरे। अब cos थीटा हम जानते हैं कि अगर एक लाइन के DRS A1 B1 C1 है, दूसरे के A2 B2 C2 है, so the cos थीटा will be given as A1 A2 plus B1 B2 plus C1 C2. अगर परपेंडिकुलर है तो A1 A2 plus B1 B2 plus C1 C2 it must be 0, right or not? So here by the given information what max I can have is, ध्यान से देखिएगा, I can have this equation, let's say capital A, and A into x2 minus x1 plus B into by2 minus by1 plus C into z2 minus z1 equals to 0. So when you said कि सर मेरे को एक इक्वेशन बता दीजिए पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स ऑफ दैट प्लेन, तो मैंने आपसे कहा दोस्त मैं आपको इतना बता सकता हूं, ध्यान से सुनिएगा मैथमेटिकली कैसे स्ट्रांग होना होता है। मैंने कहा दोस्त मैं आपको इतना बता सकता हूं कि द रिक्वायर्ड इक्वेशन विल बी गिवन बाय, क्या बता सकता हूं कि दोस्त द रिक्वायर्ड इक्वेशन विल बी गिवन बाय a into x minus x1 plus b into y minus y1 plus c into z minus z1 equals to 0 and a into x2 minus x1 plus b into y2 minus y1 plus c into z2 minus z1 will give me the required result. और ये चीज प्लेन कंटेनिंग अ लाइन, तो जो लोग 3D में पढ़ चुके होंगे कई बार उनको इतना प्यारा महसूस हो रहा होगा यहां पर कि यार कितना ब्यूटीफुली चीजों को कनेक्ट किया जा सकता है। यहां तो फुटकर में पढ़ने में तो पता नहीं क्या क्या फील हो रहा था। मेरी बात समझ रहे हैं? कल को अगर कोई आपसे ये कहे फाइंड द इक्वेशन, ध्यान से देखिएगा, इफ समवन आस्क, देखना ब्यूटीफुल पिक्चर क्रिएट कर देता हूं आपके लिए। किसी ने आपसे कहा कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ प्लेन, ये मैं बार बता रहा हूं जब आपको लाइन स्ट्रेट लाइन वाले चैप्टर के बारे में बेसिक नॉलेज है तब की बता रहा हूं, फ्यूचर पर्सपेक्ट। फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ प्लेन कंटेनिंग अ लाइन x माइनस एल्फा अपॉन एल इक्वल्स बाई माइनस बीटा अपॉन एम इक्वल्स जेड माइनस, अगर आप PYQs ऑब्जर्व करेंगे अपने CSE और फॉरेस्ट सर्विसेज के, यू विल फील द जॉय कि टीचर तो क्या बता के चला गया यार आज। सो इफ समवन इज इंटरेस्टेड फाइंडिंग द इक्वेशन ऑफ अ प्लेन कंटेनिंग अ लाइन, एक लाइन जो मेरी कहां से पास हो रही है, अल्फा बीटा गामा से, जिसके डीसीज क्या है, LMN, तो अब इसका जो आंसर आपको मिलेगा प्यारे बच्चों देखिए ध्यान से, आंसर विल बी कि द इक्वेशन ऑफ प्लेन, क्योंकि पॉइंट अल्फा बीटा गामा प्लेन पर भी तो है, विल बी गिवन बाई C into Z minus gamma equals to 0 and A into DRS of this line plus B into DRS of this line plus C into DRS of this line। बहुत से लोग इसको एज ए फॉर्मूला याद कर लेते हैं, लेकिन आज मैंने आपको क्रिस्टल क्लियर दिखा दिया कि इसका मतलब क्या होता है। आई होप ऑल यू हैव फेल्ट दैट।
प्लीज से यस और नो, बताइए। तो इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स को ऐसे क्यों लिखा जाता है, व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड दैट। अब झूठ मूठ कर डराएगा कि यार पॉइंट P1 जो है वो 1,0,1 है, पॉइंट P2 है -1,2,3 है, तो क्या होगा, तो मैं मारूंगा एक मुक्का। x1 y1 z1 x2 y2 z2 का वैल्यू रख दो, यू विल गेट द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द प्लेन। ईदर हो सकता है कि एबीसी सारे अगर सेम और बोल दिया तो एबीसी का वैल्यू भी मिल जाएगा, नहीं तो वो इस फॉर्मेट में दिखाई देगा, नहीं तो वो इस फॉर्मेट में दिखाई देगा इफ यू आर टॉकिंग दिस। सो प्लेन कंटेनिंग अ लाइन का मतलब समझ आया, और इसको मैंने यहां क्यों बोल दिया उसका रीजन आपको समझ आया, क्योंकि लाइन क्या है, 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करने पे लाइन मिल गई आपको, तो 2 पॉइंट्स वाली जो कहानी थी वहां प्लेन कंटेनिंग द लाइन बोल दिया। क्लियर है अभी बात सबको। तो प्लेन कंटेनिंग द लाइन के लिए जब इस टाइप का आपको फॉर्म बोल देता है, बोल रहा रट लेना है इसको, तो वो रटना नहीं है, आप समझ में आ गया होगा आई गेस। शैल आई प्रोसीड नाउ। अरे से यस और नो भाई। चलिए, तो पहले पॉइंट पे किया था इक्वेशन ऑफ अ प्लेन पासिंग थ्रू 1 पॉइंट। दूसरी बार में किया इक्वेशन ऑफ अ प्लेन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स। मेरे पास एबीसी 3 अननोन है लेकिन इक्वेशन 2 ही मिल रहा है, इसलिए अपन तनाव में आ गए थोड़ा सा, यार थोड़ा और इंफॉर्मेशन दो तब तो एग्जैक्ट वैल्यू बताए एबीसी की क्या होगा, नहीं तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में जाएंगे, नो सॉल्यूशन मिल सकता है, यूनिक सॉल्यूशन मिल सकता है, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस मिल सकते हैं। चलो, सो लेट्स मूव ऑन द थर्ड एस्पेक्ट नाउ। थोड़ा सा 5 मिनट एक्स्ट्रा लेंगे, वो हर बार मैं ले ही लेता हूं। आप कहते मास्टर झूठ बोलते हैं। चलिए, क्योंकि ना मुझे चीजों को कॉम्प्रिहेंसिव मैनर में देखना हमेशा ऐसा लगता है कि व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी विद साइंस ऑप्शनल, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली मैथमेटिक्स, आई एम टॉकिंग अबाउट साइंस ऑप्शनल्स। द ब्यूटी ऑफ दिस इज इफ यू आर confined in the boundaries na, and you can be, because your logical mindset will help you in that. Believe me, I am telling you reality. आप फैलते नहीं हैं, प्यार में नहीं पड़ जाते हैं उस पर्टिकुलर टॉपिक के, प्रैक्टिकल रहते हैं कि यार दिस आर द लिमिट्स, इतना पढ़ना है, ऐसे पढ़ना है, बस ज्यादा हीरो बनने की कोशिश नहीं करनी है। और यहां पर भी आप देख रहे होंगे, मैं आपको चाहूं तो इस चीज के ऊपर 4 घंटे का लेक्चर दे सकता हूं, बिना किसी नोट्स के, बिना किसी पीपीटीज के। इतनी चीजों को क्रिस्टल क्लियर बताने का अगर मैं मादा रखता हूं तो आपको थोड़ा सा आइडिया होगा कि चीजें कितनी एक्सपैंड की जा सकती हैं, लेकिन नहीं, दैट विल बिकम ऑल टुगेदर अ डिफरेंट स्टोरी। सो फॉर दैट इफ यू वांट टू गो एंड इफ यू वांट टू मेक इट मोर कॉम्पैक्ट कि हाँ मेरे को चाहिए करके, देन यू कैन अटेंड द बैचेस। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि कुछ पार्शियलिटी है, नॉट एट ऑल, बट हियर वी हैव द टारगेट्स एज डिफरेंट, कि पर्सन्स हु हैव डन कोचिंग्स, पर्सन्स हु आर ऑलरेडी थॉट कि दे आर प्रिपेयर्ड एनफ, फॉर देम लेट्स मेक देम मोर रेडी टूवर्ड्स द एग्जाम हॉल। सो दिस इज, यू कैन टेक रैपिड रिवीजन टाइप, राइट। चलो, so now I am interested in finding, किसमें interested हूं, finding the equation of a plane passing through 3 points। ठीक है, let's say x1 by 1 z1, x2 by 2 z2, x3 by 3 z3। ठीक है, अब कहेंगे सर पहले वाले में आपने एक अलग थियरी लगाई, दूसरे में एक अलग थियरी लगाई, इसमें क्या कुछ अलग थियरी लगाएंगे? मैं कहूंगा नहीं, पहले में जो थी वही सेकंड में लेकर गए, जनरल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट डिग्री से ही तो गए। जैसे जैसे मुझे डाटा आगे बढ़ाएगा वैसे वैसे मैं आगे बढ़ता जाऊंगा, राइट और नॉट।
और जहां मेरा काम होता जाएगा मैं वही चीजों को स्टॉप करता जाऊंगा। क्लियर और नॉट? चलो देखिए, सो सपोज दैट आई वॉन्ट टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ प्लेन विच इज पासिंग थ्रू दीज 3 पॉइंट्स। ओके, क्या करते हैं? टू गेट द इक्वेशन ऑफ अ प्लेन और एनी सरफेस और टू गेट द लोकस वी टेक एन आर्बिट्रेरी पॉइंट ऑन द सरफेस, राइट और नॉट? और फिर उसी के हिसाब से आगे बढ़ जाते हैं। अल्फा बीटा गामा ले लिया तो राइटिंग द लोकस, तो अल्फा बीटा गामा को एक्स वाई जेड से रिप्लेस कर देते हैं। यही तो 2 तरीके हैं मैथमेटिक्स में, और क्या है। चलो, सो लेट द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन इज, कहां से स्टार्ट करते हैं? ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल्स टू 0। लेट्स से दिस इज द इक्वेशन 1। हमने कह दिया कि ये जो इक्वेशन 1 है ये मेरा रिक्वायर्ड इक्वेशन है, जो क्वेश्चन में मुझसे पूछा गया है, राइट? तो इफ दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द प्लेन, देन दिस मस्ट बी सेटिस्फाइड by all these 3 points. So on satisfying क्या मिल जाएगा अपने को? ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस d इक्वल्स टू 0, ax2 प्लस by2 प्लस cz2 प्लस d इक्वल्स टू 0, ax3 प्लस by3 प्लस cz3 प्लस डी इक्वल्स टू 0। अब आप देखिए हमारे पास में सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस ने अपने आप इशारा कर दिया है कि दोस्त कहीं मत भटको, अब मैं तुम्हारा साथ दे सकता हूं। तो कुछ लोग उसको लीनियर अलजेब्रा का टॉपिक समझेंगे, मैं तो उसको कहूंगा वो बचपन वाला टॉपिक है आपको, सॉल्विंग द 2 लीनियर इक्वेशंस। ठीक है, तो अब देखिए, वी हैव ए बी सी डी एज 4 अननोन्स। अगर इनकी वैल्यू पता चल जाए, मैं इसमें रख दूंगा, मुझे प्लेन का इक्वेशन पता चल जाएगा, और क्या है? बोलो हाँ या ना। वी हैव 4 इक्वेशंस, so by solving we can get ABCD, right or not? अब ध्यान से सुनना, I will change the color as well. देखिए ध्यान से, सॉल्विंग द सिस्टम में वेरी पर्सन टू पर्सन। कोई इसको ax इक्वल्स टू बी फॉर्म में लिखेगा, फिर वहां से सिस्टम ऑफ नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस करके उसको सॉल्व कर देगा। कोई इक्वेशंस को मैनेज करेगा, एक वेरिएबल का वैल्यू उठा के दूसरे में पुट करेगा, फिर बाकी को सॉल्व करके कर लेगा। सो अल्टीमेटली मेरे भाई आपको करना है ये सिस्टम सॉल्व। एंड बेसिकली अगर आप ax ABCD में देखें, ABCD अननोन्स में this is a homogeneous system ax equals to 0 because here I have taken as x as कहा गया ABCD, right? So A the coefficient matrix we can write that as x by z1, x1 by 1 z1 1, x2 by 2 z2 1, x3 by 3 z4 1. And to have this system ax equals to 0, अगर homogeneous system है so it will be always consistent, तो या तो only zero solution, और अगर नॉन जीरो सॉल्यूशन चाहिए तो डिटर्मिनेंट ऑफ a must be 0। तो जीरो सॉल्यूशन a b c d सारे जीरो आ गए, तो उससे मेरा कोई भला होने वाला है क्या? आप ही बता दो, क्या भला हो जाएगा तुम्हारा? एनी भला? Not at all. So this must be 0. x y z यहां इन्वॉल्व है, ये डिटर्मिनेंट को सॉल्व करोगे will give required
equation of plane. Is that clear or not? So equation of a plane passing through 1 point, equation of a plane passing through 2 points, equation of a plane passing through 3 points. अब अगर कोई आपसे कह दे कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ प्लेन पासिंग थ्रू 4 पॉइंट्स, 5 पॉइंट्स, 75 पॉइंट, 80 पॉइंट, मेरे भाई मेरे पास 4 अननोन है ए बी सी डी, तुम मुझे 3 पॉइंट दे दोगे, क्योंकि डी को अगर मैं आरएचएस में ले जाऊं तो ए बाई डी, बी बाई डी, सी बाई डी, उनको मान लो अगर मैं अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3, सो वी हैव एग्जैक्टली 3 अननोन्स या 3 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स इन द इक्वेशन ऑफ प्लेन. So if you are giving me 3 extra conditions over that, I can give you the solution for those unknowns. नहीं समझ आया? इसको दोबारा रिवाइंड करके सुन लो क्या बोला मैंने. सुनो सुनो. क्योंकि ब्यूटी ऑफ मैथ्स जो है ना, वो इधर में और इधर में बहुत लाई करता है. ठीक, अपने लिए बोल रहा हूं मैं तो बस. ठीक है. सो थिंग इज, अब आपने 4 पॉइंट से बोल दिया, तो मैं 3 पॉइंट से पास हो, कोई भी उनमें से 3 पॉइंट उठाऊंगा, इक्वेशन ऑफ द प्लेन निकालूंगा और चौथे पॉइंट को देख लूंगा कि वो उसको सेटिस्फाई कर रहा है उस इक्वेशन को कि नहीं कर रहा है. इफ द 4th पॉइंट विल ऑल्सो सेटिस्फाई दैट इक्वेशन, आई विल से दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन. अरे बोलो हां या ना. अल्टीमेटली इफ समवन आस्क यू कि व्हाट इज द कंडीशन, देखना ध्यान से, एक और यूपीएससी का क्वेश्चन आपको दे देते हैं. फाइंड द कंडीशन दैट 4 पॉइंट्स, कौन कौन से, x1 by 1 z1, x2 by 2 z2, x3 by 3 z3, x4 by 4 z4 are coplanar. Coplanar means x4 by 4 z4 भी इसी प्लेन पर पड़ रहा है जिस पर ये तीनों के तीनों लाई कर रहे हैं. सो व्हाट विल बी द कंडीशन? बिना किसी तनाव लेते हुए, भाई x1 by 1 z1 में ये है तो x by z will also be satisfied by this point as well. सो कंडीशन मिल जाएगा x4 by 4 z4 1, x1 by 1 z1 1, x2 by 2 z2 1, x3 by 3 z3 1. दिस मस्ट बी 0. अगर वो 0 नहीं आया डिटरमिनेंट वैल्यू, वी विल से कि 4th पॉइंट, लाइक पॉइंट्स आर नॉन कोप्लेनर, मीन्स पॉइंट्स डू नॉट लाई ऑन द सेम प्लेन. इफ दैट डिटरमिनेंट वैल्यू कम्स आउट टू बी 0, वी विल से कि पॉइंट्स आर कोप्लेनर. बोलिए, कोई डाउट है तो चिल्लाइए. इक्वेशन ऑफ अ प्लेन पासिंग थ्रू 1 पॉइंट, 2 पॉइंट में बहुत ही आपको एक कॉम्पैक्ट बात बता दी कि प्लेन कंटेनिंग अ लाइन का मतलब क्या होता है, प्लेन पासिंग थ्रू 3 पॉइंट्स का मतलब क्या होता है, एंड 4 पॉइंट्स आर कोप्लेनर का मतलब क्या होता है. राइट और नॉट? सो if you want to summarize up the concept here, what I told you, plane किसके द्वारा, 1 point, 2 points, right, 3 points, 4 points and so on, right. यहां पर क्या बताया, यहां बताया इक्वेशन ऑफ प्लेन containing a line, say yes or no. और आपको डेफिनेशन ऑफ प्लेन से ले जाकर यह बताया कि भाई DRS ऑफ अ प्लेन कहने का मतलब क्या होता है. DRS ऑफ अ प्लेन कहने का मतलब यह होता है कि दोज आर द DRS ऑफ अ नॉर्मल लाइन or a line which is normal or perpendicular to that plane. So in this short span of video, this concept decoding, you got almost 2 types of questions directly handled, and the most necessary required definitions and conditions
for other chapters in the analytical geometry as well. So I hope you have enjoyed this short video, and if you feel कि if you require something else in the plane itself, be it the tetrahedron, आपको समझ नहीं आता है कि सर उसका वॉल्यूम ऐसे क्यों लिख दिया जाता है, और प्लेन्स बाइसेक्टिंग एंगल्स का मतलब क्या होता है, so those also we can talk. और if you feel like cone, cylinder, surface, envelope में मेरे को समझ नहीं आ रहा है, central conicoids में समझ में नहीं आ रहा है, so any of the ways you can have, we will definitely consider that. I hope you have enjoyed that, right or not? So don't forget to put your views or to put your wish here. We will definitely consider that. Good luck.